Hello, children. How are you? Hope you all are fine and enjoying our videos. On behalf of Jetcure International School, I welcome you all in the virtual class. Children, today we are going to study lesson number 5. The name of the lesson is Means of Communication. Yes, new lesson. Lesson number 5, Means of Communication. Now, early means of communication, in which we are going to study about early means of communication. There are so many means of communication. But in this video, we are going to study about early means of communication. Now, children, what do you mean by communication? See the pictures. Which pictures are these? Yeah, this is your mobile phones. Okay, see the mobile phone. Then we are having computers. Yes, and the third one is television. So, in modern times, children, we can say that mobile phone, computer, and your television, they are the means of communication. Communication means in which one sender is there, message is there, and one recipients is there. Understood, children? Okay, so communication means हम जो बोलता है, जो मैसेज सेंड करता है, जो मैसेज होता है उन दोनों के बीच में, और जो सुनता है, दैट इज द रेसिपेंट्स. So that's called communication. So in modern time we are having a lot of many means of communication, but in this video we are going to study about the early means of communication. See, children, your textbook, means of communication, the highlights are given in your book. Early means of communication, journey of a letter, and modern means of communication. So today in this video we are going to study about early means of communication, children. Children, the means of communication have evolved with time. We know that today we send and receive information using mobile phones, computer, and television. Suppose if I want to send some message to you people, like whatever videos or any message I want to send you, I am sending it in our WhatsApp group. So which one is our means of communication? Mobile phone. Yes. If sometimes we want to send some links, so that is we are sending in computers. Then television, every day we watch movies, cartoons, etc. in television. So all these are the modern means of communication. The modern means of communication are fast and reliable. So we don't want to focus more on modern means of communication. Today we are going to study about the early means of communication. So let's jump start. Fill in the blanks. We use different means of communication to send and receive what? Messages. Yes. People use postal service to send letters. See, children, if you want to send letters, nowadays we are sending very less letters because we are having mobile phones. Okay, they are very reliable and fast. Okay, children. So but now also we are sending letters also, like in Raksha Bandhan. If I want to send Rakhi and some card to my brother, then I will definitely use the postal service. So we are sending letters through postal service. So answer is letters. See, children, third one, email is a new means of communication. Yes, email. You can send a lot of data through email, and very fast it will go, and you can send many more, a lot of things in email. Understood, children? So let's see about early means of communication. It is Champak's birthday next week. He wants to invite his friend to a party. While planning for the party, he wonders how people communicate with their friends or relatives in the early times. He asks his teacher and they discuss it in the class. Even boy is there. His name is Champak. His birthday is there next week, and he wants to invite his friend to a party. While planning for the party, he wonders, while nowadays if we want to call our friends for party, what we are doing, children, हम क्या करते हैं, हम उन्हें फ़ोन करते हैं, उनको मैसेज देते हैं फ़ोन करके. ये नो, आजकल हमें किसी के घर जाने की ज़रूरत भी नहीं, हम फ़ोन थ्रू उनको बता सकते हैं. बट जब वो ये सब कर रहा था चंपक, तब उसको सोच आई कि हाउ, वो सोचने लग गया कि हाउ पीपल कम्युनिकेट विद देयर फ्रेंड्स और रिलेटिव इन अर्ली टाइम्स. यानी पुराने ज़माने में लोग अपने फ्रेंड्स और जो भी रिश्तेदार रहते थे, रिलेटिव्स रहते थे, उनसे कैसे बात करते होंगे. ही आस्क हिज टीचर. उसने अपने टीचर से पूछा और उसके टीचर ने देखो उन्हें क्या बताया है. His teacher tells him that people in the earlier times
They did not have mobile phones or computer. Yes, children. They found it difficult to communicate with people living far away. बहुत मुश्किल हो जाती थी उनको ये पता किसी से बात करना हो या कुछ किसी को कुछ मैसेज देना हो. ओके, तो दे यूज सिंपल मीन्स टू कम्युनिकेट. सम ऑफ दीज वर्ड, तो उस जमाने में लोग क्या यूज करते थे. आज का हमारा टॉपिक यही है, अर्ली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. यानी पुराने ज़माने में पहले के लोग कौन सी चीज़ें यूज़ करते थे कम्युनिकेशन करने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए, एक दूसरे को मैसेज देने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट. ओके चिल्ड्रन, सी दिस पिक्चर, ऑब्जर्व इट प्रॉपरली चिल्ड्रन. यस, दिस इज अ पिक्चर. यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ लोग बैठे हैं और धुआं उड़ रहा है. ओके, अब ये धुआं जानबूझ के लगाया है क्या? क्यों लगाया है? क्योंकि ये लोगों को कुछ मैसेज देना है. लोगों को पहले फ़ोन्स कंप्यूटर्स नहीं होते थे, तो अगर किसी को कुछ मैसेज देना है तो वो फायर लगा के देते थे. देखो दूसरा फोटो, ये देखो, इसमें लोग आग जला रहे हैं. यस, ड्रम बजा रहे हैं. यस, सो आपको इससे क्या समझता है कि अर्ली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? स्मोक सिग्नल एंड ड्रम बीट्स. स्मोक सिग्नल एंड ड्रम बीट्स वर यूज्ड टू सिग्निफाई विक्ट्री और डेंजर. अगर किसी को बताना है कि वो जिस युद्ध में गया था वो जीत चुका है, तो वो, या युद्ध ही नहीं, अगर वो कोई खतरे में था और पर अभी वो उसको विक्ट्री मिल चुकी है, मतलब वो जीत चुका है, तो वो आग जलाता था. उसके धुएं से लोग समझ जाते थे कि उसको विक्ट्री मिल गई है. या अगर वो किसी खतरे में है तो भी वो आग जला देता था. यानी कहने का मतलब ये है कि स्मोक, धुआं, ये एक सिग्नल का काम करता था. या तो कोई अच्छी बात हुई है या तो कोई खराब चीज़ हुई है उनके साथ. द साउंड्स ऑफ ड्रम्स कुड बी हर्ड फार अवे. देखो, अगर आपके यहाँ पे ड्रम्स की आवाज़ आ रही है तो आपके घर तक आपको आवाज़ आती है, बहुत दूर से भी. तो पहले के लोग क्या करते थे, ड्रम्स भी बजाते थे अगर कोई विक्ट्री या डेंजर बताना है तो, कोई मैसेज देना है तो. सिमिलरली स्मोक फ्रॉम अ फायर कुड बी सीन फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस अवे. अगर कोई दूर, आपने आग भी जला दी तो दूर भी बैठा हुआ आदमी वो देख सकता है, क्योंकि उसका धुआं, स्मोक, उससे पता चल जाएगा कि सम मैसेज इज देयर. अंडरस्टूड चिल्ड्रेन? बहुत दूर रहने वाले लोगों को भी समझ में आ जाएगा. अंडरस्टूड चिल्ड्रेन? नेक्स्ट, इफ यू विल सी द पिक्चर, यस, दिस इज द हॉर्स मैसेंजर, यू कैन सी. देखो, आज के ज़माने में हम जब कंप्यूटर यूज़ करते हैं, ईमेल यूज़ करते हैं, तो ये घोड़े में ईमेल लेके जा रहा है. ये न्यू टेक्नोलॉजी का मैसेंजर है. ओके, बट ओल्डन डेज में अगर आप देखोगे तो पीपल आर यूजिंग हॉर्स, और एक आदमी उसमें बैठ के आता था एंड ही इज़ गिविंग मैसेजेस टू पीपल. ये जो भी राजा मैसेज देते थे. या तो फिर ये जो पत्ते दिख रहे हैं आपको, ये पाम लीव्स के पत्ते हैं. पीपल के पत्ते आपको मालूम है ना, तो ये उसके पत्ते हैं और इस पे मैसेजेस लिखे जाते थे. ओके, सो लॉन्ग मैसेजेस वर सेंड थ्रू मैसेंजर हु ट्रैवल ऑन हॉर्स बैक और ऑन फुट. दीज मैसेजेस वर रिटन ऑन ड्राइड पाम लीव. जो सूखे हुए पत्ते रहते थे पाम के, और वो उस पर मैसेज लिख के उनको भेजते थे. ओके, और रियली कन्वेड बाय द मैसेंजर. या तो पत्तों में लिख के भेजते थे, या ये मैसेंजर जो आपको दिख रहा है ये ओरली बताता था, ये अपने मुंह से बताता था जो भी मैसेज होगा राजा का या किसी का भी. ड्राइड पाम लीव्स वर ऑल्सो यूज टू रिकॉर्ड इवेंट्स और राइट स्टोरीज. आपको जैसे मालूम है पुराने ज़माने में कागज़ नहीं हुआ करते थे, तो लोग है ना पाम लीव्स में, जैसे ये पिक्चर में आपने देखा, पाम लीव्स में लिख के रखते थे. कुछ चीज़ें अगर उन्हें बतानी है आगे फ्यूचर में लोगों को, तो वो इसमें लिख के रखते थे. अंडरस्टूड चिल्ड्रेन? सो दीज आर कॉल्ड द मैसेंजर. अब थर्ड जो अर्ली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो आप अगर देख सकते हो यहाँ पे, तो ये क्या है? दिस इज पिकॉक, और इसके पास एक कुछ तो यस लेटर है, अगर आपने देखा तो. यस, कबूतर हम बोलते हैं ना इन्हें. यस, सो दिस इज ऑल्सो वन पेपर. ओके, विच टाइप ऑफ पेपर? पार्चमेंट पेपर. सो पिजन जो होता है, पिजन पोस्ट. थर्ड मीन ऑफ कम्युनिकेशन अर्ली टाइम में था पिजन पोस्ट. ट्रेन पिजन, ये जो पिजन रहते हैं इनको ट्रेन किया जाता है. ट्रेन करना यानी इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, इन्हें सिखाया जाता है, नहीं तो ये किसी को भी लेटर दे देंगे. करेक्ट. सो ट्रेन पिजन रहते हैं और इसमें शॉर्ट मैसेजेस लिखे जाते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग वॉर्स. जब राजा महाराजाओं के या सम्राट लोगों के युद्ध होते थे, दैट टाइम ये क्या करते थे, शॉर्ट मैसेजेस इन कबूतरों से
they are sending. The message were written on pieces of clothes, palm leaves, parchment और पेपर. ये तीन चीज में लिखे जाते थे. किस किस में? कपड़े में, या ये पार्चमेंट पेपर आपको दिख रहा है, ये देखो पार्चमेंट पेपर बोलते हैं इसको, या पेपर. ओके, इस पे लिखा जाता था और इस तरह से ये कबूतर मैसेजेस देते थे अगर कोई वॉर चल रहा है तो उसमें. ओके, सो दीज वर देन टाइड द टू द लेग्स ऑफ द पिजन, और फिर ये पिजन्स यानी कबूतर के पैर में बांध दिया जाता था. अंडरस्टूड चिल्ड्रन? सो टुडे वी लर्न द अर्ली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. इन दैट वी स्टडीड अबाउट, yes, what we studied about smoke and drums. Okay, then we studied about messengers, and third is pigeon post. Hope you understood the early means of communication. So if you have any doubt, children, please ask me whenever you are having your interactive session. Thank you so much, children.